Welcome everyone for chapter 6 of the book Footprints Without Feet. I think you must have done well in your examination. If you have got any difficulty, you have to clear those in your doubt classes. Today we will read the chapter The Making of a Scientist written by Robert W. Peterson. This is a story of a young and bright scientist named Richard H. Everett. He grew up north of Reading, Pennsylvania. उनका पालन पोषण पेंसिल्वेनिया के रीडिंग में हुआ. At the age of 24, he excited the scientific world with his theory of cells. मात्र 24 उम्र में ही 24 वर्ष की आयु में ही उन्होंने विज्ञान जगत को सेल की थ्योरी से चौंका दिया था. एज ए चाइल्ड ही कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड क्वाइंस. बचपन में ही वो रॉक्स, फॉसिल्स, जीवाश्म और क्वाइंस को कलेक्ट करते थे. फॉसिल्स मीन्स जीवाश्म. नाउ समथिंग अबाउट द ऑथर. At first, he was an American newspaper writer. Later, he became the author of magazine articles and books, especially on the topic of sports and scouting. आर्टिकल के लिए उनका मुख्य टॉपिक विषय स्पोर्ट्स और स्काउटिंग ही हुआ करता था. He was born in 1925 in United States and died on 11th February 2006 by lung cancer. His popular books are Only the Ball Was White, The Boy Scout, Pigskin, etc. Now the meaning of some hard words. The first is excite. Excite means to arouse, उत्तेजित करना. Lumbago, backache, कमर दर्द. Equipment, instrument, उपकरण. Adhesive, sticky, गोंद. Basement, sealer, तहखाना. And eventually, finally, अंततः. Display, demonstration, प्रदर्शन. Beetle, an insect. Gubrella. Starling, a bird. Manna. Ornamental means decorative, सजावटी. Blueprint, design, रूपरेखा. Ingredient, component, संघटक. And debater means erger, वाद विवाद करने वाला. Before starting this chapter, my students, listen to me carefully. For the exam of 10th Board 2021, CBSE has planned to ask 20% thoughtful questions. So students, it is very necessary to know the theme or purpose of writing a story, biography or poem. We have to seek the message given by the author or the poet in any biography, story or in a poem. If you understand it, to answer any question, you have to make a feeling in yourself by keeping yourself in the place of the character of the story or poem or biography or any other. Only then the answer would be perfect. So, you have to listen to the lecture of every chapter very sincerely, very carefully. Understand? Okay, now be ready to know about a great scientist and to know what qualities are necessary for the making of a scientist. At first you watch what have been written in the box. Richard Everett has received the Shirley Scholar Award, the Semi-Pro Award for Biochemistry and Molecular Biology. रिचर्ड एवराइट ने जैव रसायन तथा आणविक जीव विज्ञान के लिए शर्ली स्कॉलर अवार्ड तथा सेमी प्रो अवार्ड प्राप्त किया. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. यह उनका तितलियों के प्रति एक आकर्षण था जिसने उनके लिए विज्ञान जगत के द्वार खोल दिए. Now you watch the first two questions, the answer of which you have to seek while going through the chapter. The first question is, how did a book become a turning point in Richard Everett's life? किस प्रकार एक किताब रिचर्ड एवराइट के जीवन में एक बदलाव लाने का एक बिंदु बना. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम?
उनकी माँ ने उनकी सहायता किस प्रकार की? At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. 22 वर्ष की आयु में ही एक फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर ने कोशिकाएं कैसे कार्य करती है इस विषय पर एक नए सिद्धांत की खोज के साथ ही विज्ञान जगत को उत्तेजित कर दिया। रिचर्ड एच एवराइट और उस 22 वर्ष के स्काउट ऑफ द ईयर का नाम रिचर्ड एच एवराइट था, जिन्होंने अपने एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। रिचर्ड एवराइट और उनके कॉलेज के रूममेट कमरे के साथी ने इस सिद्धांत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही के दौरान इसकी व्याख्या की। हिंदी में एकेडमी को अकादमी कहते हैं। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ऐसा पहली बार था जब किसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जर्नल ने कॉलेज के छात्रों का लेख उसमें प्रकाशित किया था। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. जिस प्रकार खेलों में होता है उसी प्रकार यह जो कुछ भी लेख का उल्लेख उस पत्रिका में हुआ, यह इसी प्रकार था जैसे कि खेलों में 15 वर्ष की आयु में एक बड़ी लीग का आयोजन करना तथा बैट से पहली बार होम रन बनाना होता है ना खेल में। तो इसी तरह इसमें इनका जो ये काम था इसका कंपैरिजन इस खेल से किया जा सकता है। फॉर रिचर्ड एवराइट it was the first in a long string of achievements in science and other fields. रिचर्ड एवराइट के लिए विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों की कड़ी में यह उपलब्धि पहली उपलब्धि थी। एंड ओनली चाइल्ड, एवराइट grew up north of Reading, पेंसिल्वेनिया। अकेले थे, न तो इनके कोई भाई थे न बहन थे, तो ये पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में इनका पालन पोषण हुआ। There wasn't much I could do there, he said. और वो कहते हैं कि वहाँ मैं कुछ अधिक तो नहीं कर सकता था। I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. अब अकेले थे, कोई इनकी टीम नहीं थी, तो एक ही टीम थे ना, तो अकेले तो मैं नहीं खेल सकता था, इनका कहना है। But there was one thing I could do, collect things. हाँ, लेकिन मैं एक काम कर सकता था, वो था चीज़ों का संग्रहण। So he did. And did he ever? और उन्होंने ऐसा हमेशा किया। Beginning in kindergarten, Everett collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. और kindergarten जो कि प्ले स्कूल होता है, वहाँ से ही उन्होंने संग्रहण का काम किया और तितलियों का भी संग्रहण उन्होंने उसी दृढ़ संकल्प से किया जिस दृढ़ संकल्प से वे अन्य क्रियाओं को करते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड क्वाइंस। उन्होंने चट्टान, जीवाश्म और सिक्के भी एकत्र किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। इतना ही नहीं, उनका इंटरेस्ट खगोलविद की तरह पूरी रात तारे देखते रहने का भी था। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. क्लास 1 से ही वे काफ़ी जिज्ञासु थे और काफ़ी तेज़ दिमाग के थे। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उनकी माँ भी हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया करती थीं ताकि उन्हें सीखने की रुचि बनी रहे। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. वह उन्हें टूर पर ले जाती, उनके लिए दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे, उनके स्टैंड और अन्य उपकरण लाती और उन्हें और भी कई अन्य तरीके से सहायता किया करती थी। माँ कहती हैं, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। स्कूल शुरू करने से पहले मैं उसके लिए एकमात्र साथी थी। आफ्टर दैट आईड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम।
और जब वह स्कूल जाने लगा तो मैं उसके लिए दोस्त को खोजकर, मित्र उसके लिए खोजकर मैं घर लाती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में हम दोनों एक साथ काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डैड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade। जब एवराइट थर्ड क्लास में थे, क्लास 3 में, तो उसी समय उनके पिता गुजर गए थे। सी एंड his son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things, his mother said. माँ कहती कि जब उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढ कर लाती थी। शारीरिक काम नहीं, ऐसे काम जिससे कुछ सीखा जा सके। He liked it. He wanted to learn. उसने भी इसे पसंद किया क्योंकि वह सीखना चाहता था, उसमें जिज्ञासा थी कुछ सीखने की। एंड लर्न ही डिड। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। ऐसा उसने किया भी, हमेशा स्कूल में वो अच्छे नंबर लाता था। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। दूसरे काम में दिनचर्या के कामों के लिए वह सामान्य बच्चों की तरह था। बाय द टाइम ही वाज इन द स्कूल ग्रेड, Everett had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. जब वह क्लास 2 में थे, उसी समय उन्होंने अपने कस्बे के आसपास मिलने वाली तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर ली थी। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. और वो कहते हैं कि जब उन्होंने 25 स्पेसिस का कलेक्शन किया तो शायद वो मेरा अंत ही होता अपने इस काम का, अपनी इस रुचि का। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एग्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। जब माँ ने देखा कि इसकी इस काम से रुचि हटती जा रही है तो उन्होंने एक बुक ला कर दिया। बुक का टाइटल था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एग्स। वह बुक जो कि ये बता रही थी कि मोनार्क बटरफ्लाइज का माइग्रेशन सेंट्रल अमेरिका की तरफ कैसे होता है। और इस किताब ने विज्ञान की दुनिया इस छोटे से जिज्ञासु संग्रहण करने वाले विद्यार्थी के लिए खोल दिया। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. उस किताब के अंत में जो भी किताब को पढ़ते थे उन्हें एक काम सौंपा गया था, एक आमंत्रित किया गया था उनको हेल्प करने के लिए बटरफ्लाई के माइग्रेशन का जो स्टडी किया जा रहा था। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, कनाडा। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कार्ट एक्चुअली वही रिसर्च कर रहे थे इस पर। और वो जो भी रीडर्स उस बुक के थे, जो कोई भी उस किताब को पढ़ता था, उन्हें यही कहा गया था कि वे बटरफ्लाइज को पकड़ें, उसको टैग करें और उन्हें उससे उनके पास भेज दें। एवराइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्कार्ट एंड सोन एवराइट वॉज attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. आप लोगों से हमने पहले ही डिस्कशन किया है इनके एवराइट की मदर के विषय में। Her mother was so much dedicated to the work of Everett that she didn't want to miss that chance. और उन्होंने डॉक्टर अर्कार्ट को ये लिख दिया कि उनका बेटा जो है इसमें हेल्प करेगा। और एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़ो। एवराइट्स डॉक्टर ए अर्कार्ट कैनेडा एवराइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्कार्ट, उन्होंने अर्कार्ट को लिखा एंड सून एवराइट वाज अटैचिंग, और एवराइट ने इस काम को शुरू कर दिया। विंग्स में टैग्स को गोंद से चिपका कर टैग करते थे और उन्हें भेज देते थे। कोई भी जो टैग बटरफ्लाई को पाता था उसे कहा जाता था कि वो डॉक्टर अर्कार्ट के पास भेज दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर। एवराइट के द्वारा रीडिंग के आसपास के क्षेत्रों से ये बटरफ्लाई की कलेक्टिंग का जो दौर है वो समर सीजन के लास्ट 6 weeks तक चला।
If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterfly. एब्राइट ने ये सोचा कि अगर एक एक करके मैं तितली को पकड़ूं तो ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, इसलिए उन्होंने इसे झुंड में संग्रहण करने का सोचा. फॉर दिस ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल. फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई. वह एक रानी तितली को पकड़ते, उसके अंडे लेते और उन्हें अपने तहखाने में पालते पोसते. उनके जीवन चक्र में अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से युवा तितली तक इस तरह उसका पालन पोषण करते थे. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो. फिर उन तितलियों के पंखों पर टैग करते थे और उन्हें छोड़ देते थे. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू thousands of monarchs in different stages of development. कई वर्षों तक तो उनका तहखाना तितलियों की विभिन्न अवस्थाओं में पल रही हजारों मोनार्क व रानी तितलियों का घर बन गया था. Through this picture you can study the life cycle of the butterfly. In the graph there are the kinds of butterflies and their collected numbers. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there is not much feedback, Ebright said. अंततः तितलियों को टैग लगाने में मेरा इंटरेस्ट जो है वह ख़त्म होने लगा था, क्योंकि यह थका देने वाला काम था और इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा था. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने सारा समय यह किया, लेकिन मेरे द्वारा टैग की गई केवल 2 तितलियां पकड़ में आईं और वे भी जहां मैं रहता था वहां से मात्र 75 मील दूर ही गई. So students, this is the end of the first part. You will read carefully to answer the questions. Thanks.